So we will start with the next question. So this question very special because it came in our exams and we were very confused in our exam also what was this. So it was very easy, but we didn't expect that दो क्वेश्चन साथ में आ सकता है, सुपर इम्पोज एक तरह से इस पे. So first we will see the signs. This is splinter hammer. You can see over here. You can see where these splinters एक लाइन जैसी दिख रही है. These are called splinters. इसको splinter hammer बोलते हैं. ये नेल्स पे होता है. और एक यहाँ पे Janeway lesions दिख रही है. Janeway lesions ये पैर पे होता है. एंड दिस ऑस्लर नोट्स, स्मॉल स्मॉल ऑस्लर नोट्स. एंड दिस रेटिना पे रॉट स्पॉट्स. ठीक है, रॉट स्पॉट ये स्प्लिंटर हेमरेज है. जो हेमरेज है वहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लड है वो थोड़ा रिलीज होने लगता है, तो उसको हम हेमरेजेस बोलते हैं, स्पॉट स्पॉट्स बोलते हैं यहाँ पे. सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ये दिस इज PYQ फॉर आर दैट केम इन आवर एग्जाम्स. सो a 20-year young female patient is admitted in a ward with a chief complaint of fever, fatigue, breathlessness, and NYHA class 3. What is NYHA and what is MMRC? You want to tell me when to use where. ठीक है, रेस्पिरेटरी में कौन सा यूज होता है और हार्ट कार्डियक वाली इसमें कौन सा यूज होता है. ट्रिक इज वेरी सिंपल. आर है तो रेस्पिरेटरी में होता है, एच है तो हार्ट के कॉज में होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? ओके, यू हैव टू टेल मी. फीवर, फटीग, ब्रेथलेसनेस एंड पाल्पिटेशन सिंस 2 weeks. ठीक है. शी हैज अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, फ्लीटिंग जॉइंट पेन एंड शी was 12 years when she was 12 years of age, for which she was advised antibiotic injection. अब ये क्या है? सोर थ्रोट था. ये तो हम लोग सेकेंड डे से पढ़ते हैं. सोर थ्रोट से हुआ तो क्या होता है? रोमैटिक फीवर है ये. एवरी एवरी उसको इंजेक्शन देना पड़ा एवरी 21 days. सो दैट वुड बी मोस्टली पेनिसिलिन इंजेक्शन, बेंजाथाइन, पेनिसिलिन और पेनिसिलिन भी हो सकता है. ठीक है, पेनिसिलिन इंजेक्शन. सो विच टुक उसने 3 years तक लिया एंड देन स्टॉप. ऑन एग्जामिनेशन शी हैड टैकीकार्डिया, systolic murmur in the apical area leading to the axilla. ठीक है, she has tachycardia and systolic murmur. Point to be noted. And she also has the splinter hemorrhage in the nail beds. Okay, so this thing I didn't know the splinter hemorrhage was in the infective endocarditis especially. So I wrote my diagnosis as the rheumatic heart disease, but I wrote the as a probable diagnosis of the infective endocarditis because it has progressed. But here the correct diagnosis would be infective endocarditis on the rheumatic heart disease, because she has also have murmur, so it is a mitral regurgitation. So जो ब्लड मिट्रल एरिया है, जो ब्लड जो रिग्रेटेड करेगा ऊपर तो उससे क्या होगा? आवाज़ आएगी. तो वही है सिस्टोलिक मर्मर है. और सिस्टोलिक में क्यों होगा? जब हार्ट नीचे वेंट्रिकल जब पंप कर रहा है तभी तो ब्लड आगे जा रहा है, तो इससे थोड़ा ऊपर भी ब्लड चला जाएगा. ठीक है, डायरेक्शन डिपेंड करता है कि कौन सा साइड में डायरेक्शन है. अभी ये ऐसे होता है तो ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ये तो खुलेगा, और नीचे जाएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई आई शोड दिस साइन ओवर हियर. दिस कैन कम इन एग्जाम अगेन ऑल्सो. सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. सो एंड अदर क्राइटेरिया वेरी आस्क्ड. So for the rheumatic fever, rheumatic heart disease, the Jones criteria is used, and for the infective endocarditis, the Duke criteria, modified Duke criteria is used. Major minor criteria दोनों में होते हैं. You have to learn this. I had one trick over here. Karcher's. CA for carditis, AR for arthritis, CH for the chorea, ER for the erythematous marginatum, and S for the subcutaneous nodules. Okay, Karcher's. So for Duke's criteria, you have to learn that only that positive blood culture, evidence of the endocardial damage, or the echo and all. You have to learn that way. Okay. It's very scoring, and it can come in MCQ also, it can come in the SAQ also, it can come in the LAQ also. So you have to learn that. And management is simple. For the infective endocarditis, you have to treat the patient with the antibiotics, depending on the which group it is presenting on the infection. So that antibiotic you have to use for the, just like the HAECK group, you have to use the ceftriaxone. And when there is an enterococci, you have to use the penicillin G or the gentamicin also. So depending on the organism, you have to use the different types of antibiotics. Okay, and also other tests you have to use when the other complication there is happening for the heart failure, you have to use the furosemide and ACE inhibitors also. For large vegetation, you have to remove it by surgically. Okay, so these are the things. And also for prophylactically, the antibiotics given if there is a prosthetic valve have been implanted in the patient, so you have to use the antibiotics and the anticoagulants. Okay. So what is the sequence over here?
फर्स्ट द पेशेंट हैज़ अ सोर थ्रोट, देन द पेशेंट सोर थ्रोट हो गया, उसके बाद में होता है उसको रोमैटिक फीवर होगा, उसको रोमैटिक फीवर होने लगा, उसके बाद में आता है रोमैटिक हार्ट डिजीज होता है, उसके बाद में आता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, जो पेशेंट ठीक से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेते या फिर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो गया तो ठीक है. सो दिस इज अ सीक्वेंस यू हैव टू लर्न दैट ओवर हियर. ओके, connect these things in your exams. Okay, and also the rheumatic heart patient presents with the mitral stenosis or the mitral regurgitation. Okay, so whenever there's a mitral regurgitation or stenosis, see, so you have to think patient has a rheumatic heart disease or infective endocarditis. Okay, this was also a PYQ question. Okay, 28-year-old female presents with the progressive exertional dyspnea, palpitations, recurrent episodes of the hemoptysis. ठीक है, she gives a history of rheumatic fever during the childhood. On examination, an opening snap followed by the mid-diastolic murmur out of the place. Or other way, this question can be expanded over here. The breathlessness था उसको, increasing breathlessness on exertion, recurrent episode of hemoptysis, and occasional palpitations. She gives a past history of the rheumatic fever during the childhood. She has a rheumatic fever in the childhood. On examination, the malar flush is present. For this, I have taken the question. Okay, what is malar flush? And pulse is irregular on auscultation. Reveals a loud first heart sound, means S1, an opening snap and low pitched mid diastolic murmur heard over the apex. So, before starting this question, just tell me in which intercostal area on the chest we auscultate which heart sound. Aortic कहाँ सुनते हैं, pulmonary कहाँ सुनते हैं, S1 कहाँ सुनते हैं, S2 कहाँ सुनते हैं, the tricuspid कहाँ सुनते हैं, mitral कहाँ सुनते हैं, and what is Erb's point, where it is find. Okay. So starting with this question, what is malar flush? malar flush यहाँ पे जो redness दिखेगा हमें, ठीक है, malar एरिया पे. Okay. So what is this? We will start here. तो क्या बोला उन्होंने, फर्स्ट हार्ट सुना दिया इसमें, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड. पहले S1 होता है, फिर S2 होता है. S1 पे क्या होता है, S1 मीन्स मिट M1 एंड T1. M1 T1 के क्लोजर से बनता है एवी वॉल की, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल के क्लोजर की वजह से क्या होता है, ये S1 साउंड होता है. और एओटिक एंड पल्मोनरी A2 P2 इनकी वजह से S2 बनता है. ठीक है, तो एवी वॉल क्लोजर, वॉल की क्लोजर, और यहाँ पे एओटिक एंड पल्मोनरी वॉल की क्लोजर, ये साउंड्स बनते हैं. ठीक है, तो M1 और T1 दोनों सुपर इम्पोज होते हैं, दोनों अलग अलग साउंड होते हैं. मतलब S1, अगर ऐसा ग्राफ बना दूं मैं, एक S1, ये S1, ये पूरा मिला के S1 है, ये M1 क्लोज हुआ, ये T1 क्लोज हुआ, इसकी वजह से बनता है. अगर इनमें कुछ गैप आया तो साउंड चेंज होता है. ठीक है, यू विल नॉट गोइंग ओवर हियर. सो इफ आई मेक हार्ट ओवर हियर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया T1, ये हो गया M, ये हो गया, ये हो गया T, ये हो गया M, और यहाँ से एओर्टिक का पल्मोनरी निकल रहा होगा. ठीक है, ये हो गया एओर्टिक, ये हो गया पल्मोनरी. ठीक है, इधर वॉल्स हो गया, ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हुआ है. Okay, so whenever this mitral and the tricuspid closes, the S1 sound has come. So mostly loud first heart sound मैं बोला इसने, इसने क्या बोला, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड बोला इसने. तो मोस्टली यहाँ पे कुछ पैथोलॉजी होगी, M1 या फिर T1 वाली पड़ेगी, क्योंकि S1 कहाँ से बनता है, M1 और T1 से. सो वी हैव टू फाइंड आउट दी विच एरिया इट इज प्रेजेंटिंग, M1 M प्रॉब्लम है या T1 प्रॉब्लम है. अभी what is the next thing, opening snap of low and low pitched mid diastolic murmur head best at the apex. apex पे कौन सा रहता है, एट्रियल या मिट्रल, मिट्रल सुना देता है. ठीक है, सो ऑल्सो इट इज कॉल्ड द मिड डायस्टोलिक मर्मर. सो S1 होता है, ये हुआ S1, ये हुआ S2, अब S2 फिर से S1 आने वाला है. तो मिड डायस्टोलिक मर्मर क्या हो गया, मिड डायस्टोलिक. S1 S2 किस में होता है, ये सिस्टोल में होता है, तो नाम है इसका एस क्यू नाम है, तो एस सिस्टोल है. ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे ए डायस्टोल का फेस है. तो ये मिड डायस्टोलिक मर्मर, कि यहाँ पे कहीं पे ये मर्मर सुनाई दे रहा होगा. ठीक है, क्यों सुनाई दे रहा होगा, ये M1 और T1 जो है क्लोज हुआ, एस मतलब M1 T1 क्लोज हुआ. सो
बिफोर क्लोजिंग वो ओपन भी हुआ होगा, तो मतलब इसके जो पहले है यहाँ पे अगर M1 T1 जो क्लोज हुआ है तो उसके पहले क्या ओपन भी होगा, तो ये ओपनिंग स्नैप जो है इसके इसकी आवाज़ है वो, तो ये M1 T1 के ओपन से हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे A2 और P2 है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ओपन क्या होगा, इससे पहले कहीं ओपन हुआ होगा, ठीक है। तो ये M1 T1 ओपन हुआ रहेगा, तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ गया। और एपेक्स पे सुनाई दिया, एपेक्स पे क्या सुनाया था, मेरे को एम साउंड सुनाया था, तो दिस इज कॉल्ड, यह क्या हो गया, मिड ट्रांससिनोसिस हो गया। सो जो क्वेश्चन की जो गिवन थिंग्स है उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और थोड़ा दिमाग लगा दिए तो। बाकी चीज़ें कैसे है अभी, इसने बोला कि इंक्रीज ब्रेथलेस ऑन एक्सर्शन है और एपिसोड हिमोप्टाइसिस है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिमोप्टाइसिस आई कैन प्रूव दैट इज मेट्रास्टिनोसिस। हाउ, ये हो गया हार्ट, ठीक है, मैं नहीं बता देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ये जो वॉल्व है यहाँ पे ये क्लोज हो गया समझ लो, इसको ये जो है मेट्रास्टिनोसिस, ये जो वॉल्व पूरा क्लोज हो गया, पूरा क्लोज हो गया, तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो ये बैक प्रेशर क्रिएट करने वाला है, बैक प्रेशर क्रिएट करने वाला है, यहाँ पे जाके यहाँ पे, तो बैक प्रेशर क्या होगा, ये जो ब्लड है यहाँ से थोड़ा फ्लूइड क्यों लीक है, बाकी ब्लड भी लीक हो सकता है, तो ये ब्लड थोड़ा सा लीक होगा, यहाँ पे ब्लड लीक हुआ तो ये यहाँ भी नहीं, यहाँ फ्लूइड लीक होगा, और यहाँ पे जो एल्विला है, एल्विला के अंदर भी थोड़ा सा ब्लड लीक हो जाता है, फ्लूइड लीक हो जाता है, वहाँ से भी क्या होगा, वो कफ होके बाहर आएगा, ठीक है। एल्विला में थोड़ा सा ब्लड आ सकता है क्योंकि बैक प्रेशर है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, उसकी वजह से कैपिलरी प्रेशर बढ़ रही है, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड कफिंग करेगा तो ब्लड आएगा कफ में, तो उसको हीमोप्टाइसिस बोलेंगे, इसलिए हीमोप्टाइसिस हो रहा है। हीमोप्टाइसिस का कॉज तो एक ही है, इसकी यही हो सकता है, यहाँ पे कॉज नहीं होगा क्योंकि यहाँ से तो ये ऊपर कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, आगे से जाएगा नहीं ऐसे, ठीक है। तो दिस इज मेट्रास्टिनोसिस, ओके। मालर फ्रेश क्यों है, क्योंकि जब ये ब्लड, बिकॉज द ब्लड इज एडिक्वेट ब्लड नहीं रहेगा यहाँ पे, उससे स्टेनोसिस है तो एडिक्वेट ब्लड नहीं आएगा, एडिक्वेट ब्लड नहीं आया तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट जो है, मैंने पहले बोला था कि अब ब्लड कम आ रहा है तो क्या होगा, वैसे कंस्ट्रिक्ट होगा, वैसे कंस्ट्रिक्ट होगा तो वो फ्लूइड अपने पास ही थोड़ा रखेगा ना, तो उसकी वजह से माला फ्लशिंग मिलेगी। सो दिस इज मिट्राल सिनोसिस, ओके, नॉट ट्रैकोस्पिनोसिस, यू हैव टू रूल आउट, ओके, लाइक दैट ओनली। सो ट्रीटमेंट क्या आएगा यहाँ पे, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी करना पड़ेगा, चेस्ट से करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड का, ईसीजी पे क्या दिखेगा, चेस्ट पे क्या दिखेगा मेरे को, डबल एट्रिया का ये बलून दिखेगी, ये जो एक्सरे हमारा ऐसा नॉर्मली ऐसा दिखेगा तो उसमें ऐसा डबल बलून दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, डबल एट्रिया शैडो दिखेगा इसमें, लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट दिखेगा इसमें, क्यों लेफ्ट एट्रिया एनलार्जमेंट होगा, क्योंकि ऊपर से ब्लड नहीं आ रहा, ये लेफ्ट एट्रिया का जो ऊपर से ये जो है ब्लड नहीं, ब्लड आ रहा है, तो ये जो एट्रिया का एनलार्जमेंट होगा कि यहाँ पे ब्लड पुश नहीं हो रहा आगे ना, आगे ब्लड पुश नहीं हो रहा, पुश नहीं होगा तो क्या होगा, ये पुश किया नहीं, ब्लड गया खुद को ही एक्सपांड कर देगा, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट हो जाएगा इसमें। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग्स आर हैपनिंग हो गया, एंड ऑल्सो व्हाट कैन हैपन, डायलेटेशन ऑफ द पल्मोनरी एओर्टा हो सकता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है जो हमारी, ये जो आ रही है, ये जो ब्लड बैक पुश हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे ब्लड रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो पाइप है, जो ये जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, इस पर भी प्रेशर आएगा तो वो भी डायलेटेशन होगा, वो डायलेटेशन हुआ तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व यहाँ पे जो होती है उसको भी नियर बाय सचो को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, प्रॉब्लम डिस्पेचिया वगैरह होगा, हॉर्सेस ऑफ वॉइस वगैरह होगा, हॉर्सेस ऑफ वॉइस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, ओके, टेल मी। Also, so treatment over here. So by treating this, we have to treat the walls. So before the walls, you have to the balloon valvotomy करना पड़ेगा इसमें, ए सिनेमीटर नहीं, सॉरी, सो ये रेट कंट्रोलिंग ड्रग्स देना पड़ेगा, हाइपरटेंशन रहेगा तो उसमें, और एंटी कोगुलेंट देना पड़ेगा, बलून वाल्वोटोमी करना पड़ेगा, बॉल को रिप्लेस करना पड़ेगा, पॉजिटिव बॉल लगाना पड़ेगा, मैकेनिकल बॉल लगाने पड़ेंगे, okay. So this is very simple thing, this can come in exam, this kind of question was asked in our question, okay, exams, okay. So next question, 35-year-old old with a rheumatic history, with exertional dyspnea, collapsing pulse, and the early diastolic murmur at the left sternal border. अभी कोलैप्सिंग पल्स का एक प्रॉपर ये वर्ड है, की वर्ड है, तो एओटिक रिगर्जिटेशन के लिए, सो दिस एओटिक रिगर्जिटेशन, डोंट थिंक एल्स ओवर है, एनीथिंग एल्स ओवर है, तो ये अर्ली डायस्टोलिक मर्मर कैसे मालूम पड़ेगा हमें, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मतलब कि S1 था, फिर S2 था,
ये M1, ये T1, ये A2 और ये P2। अर्ली डायस्टोलिक मतलब कि S1 S2 सिस्टोल हो गया। इसके जस्ट थोड़ा सा बाद मतलब इसको क्लोज होना था, ये क्लोज हुआ नहीं, इससे क्या होगा, इसमें से अर्ली डायस्टोलिक मरमर आया है। वो क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है, तो पी हो सकता है। अब यहाँ पे कोलैप्सिंग पल्स कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बाय हियर। सो यहाँ पे क्या होता है, पहले लेफ्ट वेंट्रिकुलर ओवरलोड होगा। क्यों, एओर्टिक रिगर्जिटेशन कर रहा है। जो नॉर्मली लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आएगा, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द एओर्टा इट विल गो टुवर्ड्स द बॉडी। एओर्टिक आस से होते पूरी बॉडी में जाएगा, बट एओर्टा में ना जाते हुए ब्लड रिगर्जिटेट कर रहा है। तो नॉर्मली जो हार्ट का वॉल्यूम इतना था, वो अभी थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा है इसके अंदर। तो क्या होगा, ये जो ब्लड ज़्यादा है रिगर्जिटेट कर देगा, तो क्या होगा, ब्लड इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बार बार 50 फेंकना था, 40 फेंका, 50 फेंका इसने, 50 फेंकना था, 50 फेंका, 10 वापस आ गया। 50 फेंकना था, 50 फेंक दिया, 10 वापस हो गया। तो ये रीगर्जिटेट हुआ। तो ये रीगर्जिटेट हुआ तो क्या होगा, बार बार इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। कॉन्ट्रैक्टली बराबर थी, लेकिन क्या रीगर्जिटेट हुआ, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बार बार प्रेशर आता रहेगा, बार बार प्रेशर आता रहेगा। एक टाइम के बाद इसका ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड में क्या होगा, अब इसको पूरा फेंकना है ब्लड, तो ये हाइपरट्रॉफी होगा और मसल बनाएगी। भाई और फेंको, ब्लड क्यों नहीं जा रहा, ब्लड जा क्यों नहीं रहा है, इसको लगा ब्लड जा नहीं रहा, लेकिन जाता बराबर आता है, वो उल्टा फेंक रहा था। तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ओवरलोड होगा। ओवरलोड हुआ तो उससे हाइपरट्रॉफी हो गया। हाइपरट्रॉफी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो सकता है, और फिर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ही बढ़ेगा। क्यों, अ, अब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ, यहाँ ब्लड जाता है तो ऊपर एट्रिया है वो ब्लड फेंकेगा, नीचे तो ऑलरेडी ब्लड है तो उस पर प्रेशर आएगा, उस पर प्रेशर आएगा तो ऊपर ऊपर क्या होगा, पल्मोनरी एओर्टा में प्रेशर बनेगा, एओर्टा में बढ़ा तो फिर लंग्स में प्रेशर बनेगा। सो दिस वेरी एक सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है, पूरा एक साइकिल है इसका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हुई तो क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इससे इंक्रीज होगा इस वजह से, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन से। सो पेरिफेरल वैस्कुलराइजेशन कम हो जाएगा। अब ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ज़्यादा तेज़ से पहुँच रहा है, तो क्या होगा, जो कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स थे थोड़े से खुल जाएंगे। भाई ज़्यादा ब्लड आ रहा है, आराम से आने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम से फ्लो हो रहा है। इससे क्या होगा, लेकिन इससे क्या होगा दिक्कत, कि पेरिफेरल वैस्कुलराइजेशन कम हो गया तो क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अभी ये पेरिफेरल वैस्कुलराइजेशन क्यों था, ये ब्लड जा रहा है इसमें से, तो ये जो कंस्ट्रिक्शन है इसमें से क्या बैक प्रेशर भी आएगा, थोड़ा सा प्रेशर पीछे भी आएगा। कैसे पीछे आएगा, कोई भी हम पाइप लगाते आगे आगे हम पकड़ लिए, पाइप को नल में लगाया, पाइप पकड़ लिया, तो क्या होगा, नल से थोड़ा पाइप से निकल टोटी में से पानी निकल जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, अगर ये वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ मतलब कि पाइप थोड़ी बंद हो गई, तो क्या बैक प्रेशर आएगा। तो किस पे प्रेशर आएगा, हार्ट पे प्रेशर आएगा। तो ये एक्चुअली नॉर्मल प्रेशर जो होता है अपना 50 60 80 90 जो होता है, ये जो प्रेशर नॉर्मल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर में ही अपने जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें मिलता है। नॉर्मली हार्ट अपने खुद को सप्लाई डायस्टोलिक में करता है, ना कि सिस्टोलिक में। सिस्टोलिक में बॉडी का होता है, डायस्टोलिक में खुद को करता है। तो जो बैक प्रेशर है उसकी वजह से कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर में होता है। लेकिन अभी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है कम हो गया, तो क्या हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर कम हो गया। डायस्टोलिक प्रेशर कम हुआ तो कार्डियक कोरोनरी सर्कुलेशन है वो खुद कम हो जाएगा, तो खुद के लिए नुकसान कर लिया उसने ये चीज़। तो डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा तो कार्डियक ब्लड परफ्यूजन कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, फिर से एम आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो चुका है, हाइपरट्रोफी उसको और ब्लड चाहिए, उल्टा ब्लड कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा उसके टाइम के बाद। तो इसके अलग अलग कॉजेज है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वही है, ईसीजी करो, डॉपलर करो, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, कोरोनरी एंजियोग्राफी करो सर्जरी करने के लिए, ट्रीट करने बेसो डायरेक्टर्स दो थोड़ा सा इसमें, डायरेक्टिक्स दो इसमें, और ये सब करना है इसमें, ठीक है। तो बाद में पोस्टरी वॉल्स लगाना है इसके अंदर। ठीक, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं यहाँ पे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस होते हैं कि वॉल डैमेज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है, सडन कार्डियक डेथ होता है उसमें, एओर्टिक डिसेक्शन है और हो सकता है इसमें, ठीक है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन कॉमनली किसमें पाया जाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में, रूमेटिक हार्ट डिजीज में, एओर्टिक डिसेक्शन में होता है ये, और मार्फन सिंड्रोम में तो कॉमन है ही। और भी डाउन सिंड्रोम इस सब में होता है क्या, इस सेल में, टर्नर्स में होता है, क्लाइनवेटर में होता है क्या, किसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ये होता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, या फिर इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट होता है जो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60-year young male presented to casualty with a left side chest pain related to the left shoulder associated with the sweating since last 4 years, 4 hours. He is a
एक मिनट, 60 ईयर पेशेंट है, यंग भी है, कैसा हो सकता है ये? ही इज ए क्रोनिक स्मोकर सिंस 15 years. His ECG shows 5 mm ST elevation with in leads of the V1 to V6. ST elevation मतलब कि MI. अभी यहाँ पे क्या V1 to V6 बोला, V1 to V6 बोला. What is the probable diagnosis? Is fatter not. तो लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है इसको, रीडिंग टुवर्ड्स दी लेफ्ट शोल्डर विद स्वेटिंग एंड लास्ट 4 years. ठीक है, पूरा इसमें एक्यूट ऑनसेट हो गया, ये फटाफट इसको पेन होने लगा, चेस्ट पेन होने लगा, रीडिंग होने लगा, अगले साइड में डिबेट होना चाहिए इसमें, तो इस कुड भी एम आई. बट अभी फाइनल एमबीबीएस में तो हमें बताना पड़ेगा कि ऑन ईसीजी विच साइड का एम आई इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब कि हमें ब्लड पहुंचा नहीं, उसकी वजह से इन्फाक्शन होने लगा, वहाँ पे सेल्स मरने लगे वहाँ पे. तो कौन सा वॉल, हार्ट के बहुत सारे वॉल है यहाँ पे, एंट्री वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, बीच का सेप्टम है, और लेफ्ट राइट वॉल है, लेफ्ट वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, इंफीरियर वॉल है. तो कौन सा सेप्टम कहाँ पे है, कौन सा सप्लाई कर रहा है, उसमें दिक्कत आई है वो हमें पता करना है. ठीक है, कौन से वेसल में दिक्कत आई है, वेसल में दिक्कत आ रही है कि वेसल ब्लॉकेज हुआ है, इसकी वजह से वो ब्लड पहुंचा नहीं पा रहा है. So by ECG we can see which wall has the defect over here. यहाँ पे V1 to V6 सब में estimation, मतलब कि सब में ये प्रॉब्लम आ रही है. V1 अभी कैसे होता है ECG में, V1 लगाते हैं, V1 V1 V2, V1 यहाँ लगता है स्टर्नम की साइड में, तो V2 यहाँ लगता है, समझ लो बटन मेरा स्टर्नम है, V1 V2, V3 V4 V5 V5 इसी साइड में, और V7 V8 पीछे. ठीक है, V1 V2 V1 हो गया, V2 हो गया, V3 V4 V5 V6 V7 चलता रहेगा. ठीक है, तो V1 और V1 V2 किस लिए हो गया, सेप्टम के लिए हो गया. ठीक है, V1 V2 किस लिए हो गया, सेप्टम के लिए हो गया, और V3 V4 किस लिए हो गया, एंट्री वॉल के लिए, दोनों सब एंट्री में, सेप्टम हो गया, एंट्री वॉल हो गया, बाद में क्या आएगा साइड का, तो ये लैटरल वॉल हो गया, V5 V6 लैटरल वॉल, V7 V8 पोस्टीरियर वॉल का हो गया. अभी सप्लाई कैसे मानना पड़ेगा, कौन सा ब्लड सप्लाई में अटका रहेगा, ये क्या होता है. अभी मैं ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये भी वीडियो में उल्टा हो सकता है, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा आगे वाला पार्ट, ये जो है मेरा, ये है मेरा लेफ्ट लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन हो गया मेरा, ये लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन, V1 V2 V3 V4 लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन हो गया. ठीक है, लेकिन अभी लैटरल में जा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं हाथ को सर्कमफ्लेक्स कर रहा हूँ, तो ये लैटरल के लिए कौन सा है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ये थोड़ा ट्रिक है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, तो ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, और पीछे जाने के लिए सर्कमफ्लेक्स करना है, तो फिर ये भी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स. तो V1 V2 मैंने क्या बोला, V1 V2 V3 V4 ये सब के लिए क्या है, लेफ्ट लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन हो गया. और ये V5 V6 जो पीछे जा रहा है, V5 V6 ये जो पीछे जा रहा है, ये थोड़ा घुमाना पड़ रहा है, तो ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, और पीछे भी V8 और V7 और V8 हो गया, ये भी क्या है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, पीछे जाना पड़ रहा है. अब आता है राइट की बारी. अब क्या बचा, राइट वॉल बचा, इंफीरियर वॉल बचा और राइट वॉल बचा, इसलिए नॉर्मल है राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये पूरा मेन मेजर कॉर्नरी आर्टरी वही हो गया. ठीक है, ठीक है. ये क्या हम उसको लिखते हैं VR4, VR लिखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, जो यहाँ पे लगता है वो, ठीक है, राइट साइड में लगता है उसको VR4, तो ये उससे राइट साइड का राइट कॉर्नर आर्टरी जो सप्लाई करती है. तो इससे मालूम पड़ता है कि लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन में जो है ब्लॉकेज हुआ रहेगा. ठीक है, तो लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी जो हमारा ब्लॉकेज होगा, प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन का ऑक्लूजन हुआ रहेगा यहाँ पे. ठीक है, तो अगर इस फैक्टर बोलना है वही मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल, PSI में पढ़ा था हमने इसको. मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मोनाक इज अ वेरी कॉमन टर्म हो भैया. पहले उसके पेशेंट को स्टेबल है कि अनस्टेबल उसको देखना पड़ेगा, उसको पहले एज ए इंटर्न मुझे इसको एडमिट करना पड़ेगा, जनरल मैनेज करना पड़ेगा, उसमें उसको पेन रिलीफ करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ेगा कि ऑक्सीजन सप्लाई का हमारे से मायोकार्डियल इंफाक्शन हो रहा है, तो नाइट्रेस देना पड़ेगा कि ये डायलेटर है, वेनो डायलेटर है, तो वहाँ पे जो ब्लॉकेज है वहाँ पे थोड़ा सा डायलेट करके थोड़ा सा ब्लड फ्लो इंप्रूव कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, और एस्पिरिन और क्लोपिडोग्राफी लेंगे, इसमें थ्रोम्बस नहीं बनना चाहिए. क्या हो रहा है, ये थ्रोम्बस नहीं बनना चाहिए, अगर ब्लड पहुँच नहीं रहा तो हार्ट पंप नहीं करेगा तो वहाँ पे रुक जाएगा, तो वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बस ना बने, थ्रोम्बस बन गया, अगर क्या होगा, थ्रोम्बस बन गया और मैंने हार्ट को फिर से शायद मैंने हार्ट फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो थ्रोम्बस जाके ब्रेन में स्ट्रोक कर सकता है, कहीं जाके ब्लॉक कर सकता है, कहीं थ्रोम्बोलिस कर सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है. तो इसकी वजह से हमें एस्पिरिन और क्लोपिडोग्राफी देना है. इसकी डोसेस हमें याद रखनी है, क्योंकि एज अ इंटर्न ये केस आएगा ही हमें. ठीक है, तो मॉर्फिन 2 to 4 मिलीग्राम IV, नाइट्रेस सबलिंगुअल 0.4 मिलीग्राम मिलीग्राम देना पड़ता है, नाइट्रेस 325 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम. ठीक है, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रेल और प्रासुग्रेल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री ड्रग्स, व्हाट इज द साइड इफेक्ट्स, यू हैव टू लर्न द साइड इफेक्ट्स आल्सो भैया. ठीक है, सो ये हो गया. उसके बाद में
एंटी कोलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी इसके बाद करना है, पेशेंट को हमें शिफ्ट करना है नॉन स्टेमी है स्टेमी हिसाब से हमें पेशेंट को आगे फॉरवर्ड उसको ट्रीटमेंट करना है। अगर स्टेमी है तो भी क्या करना पड़ेगा, इफ़ ही इज़ प्रेजेंटिंग टू पीसीआर सेंटर, नॉन पीसीआर सेंटर। नॉन पीसीआर सेंटर में क्या है, अगर वो 90 मिनट्स के अंदर वो स्टार्ट होंगे तो उसको हमें पीसीआर सेंटर भेज देना है। वहाँ पे पीसीआर सेंटर में क्या होगा, सीएबीजी होगा, स्टेंटिंग होगा, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन ऑफ द हार्ट एंड दी अदर कोमॉर्बिड फैक्टर्स, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, उसको डायबिटीज़ है, या फिर हार्ट फेलियर हो चुका है अच्छे से, पहले भी हुआ था क्या उसको, उसके डिपेंडिंग उसको सीएबीजी करना पड़ता है उसमें। ये स्टेंटिंग हमें करते हैं। नॉन पीसीआर सेंटर से अगर वो 120, अभी 120 मिनट से ज़्यादा, सॉरी आई टोल्ड यू शायद 90 मिनट्स, इट इज़ 120 मिनट्स। अगर 120 मिनट में अगर पहुँच पा रहा है 2 घंटे के अंदर, वो दूसरे पीसीआर सेंटर में पहुँच सकता है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंस सेंटर में पहुँच सकता है, तो ठीक है। नहीं पहुँच सकता, यहाँ पे हमें उसको थ्रोम्बोलाइसिस करना पड़ेगा। अगर थ्रोम्बोसोमस है, जो भी थ्रोम्बोलाइसिस करना पड़ता है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या क्या यहाँ पे, टेनेक्टाप्लेस, अल्टीप्लेस हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेसिस हो गया, तो ये सब में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका हैमरेज हो सकता है, एलर्जी हो सकती है इन चीज़ों से, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एडिशन क्या है, हार्ट फंक्शन इंप्रूव करने के लिए बीटा ब्लॉकर, रेस इनहिबिटर, स्टैटिन देंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस इज सिंपल थिंग। यहाँ पे ईसीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर ईसीजी में वीडियो चाहिए, सो कमेंट डाउन इफ यू वांट अ वीडियो ऑन द ईसीजी। Also, one thing I want to tell you, these are some bonus question that I told you in the last video, hyponatremia, meteoroacidosis. You can solve this. And after that, one more thing, you have to learn every ways of the JVP। ए वेव में क्या होता है, ए सी एक्स सी, ए एक्स सी वी वाई जो वेव्स है, कौन से वेव कौन सा क्या मतलब होता है, और पॉजिटिव वेव्स कौन से, कौन सा नेगेटिव वेव्स है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन आवर वाइवा, और JVP is very important for the viva question, okay। And also read this question for the Marfan syndrome, okay। Thank you।